Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to discuss another important topic in biology, and this is high and low blood pressure. Okay, but before we start discussing the topic, there is an important concept that we need to understand, and the concept is called as osmosis. Please be informed, students, that this video lecture is exclusively for the students of class 9 and class 10. Okay. So let's start with osmosis. To understand the concept, we are taking a beaker. Let's try to compartmentalize the beaker. हम beaker के दो हिस्से कर देते हैं, ठीक है? ये जो partition हम लोग create कर रहे हैं, we are creating it by the help of a semi-permeable membrane, SPM, the semi-permeable membrane. Okay. Now let's name this side of beaker as side A, and let's name this side of beaker as side B. Fine. Now what I am doing is I am filling this side of beaker with water, and I am filling this side of beaker as well with water. Okay. Now I am filling this side of beaker with water, plus I am adding 2 tablespoons of common salt. And onto this side, I am adding, let's say for example, 8 tablespoons of common salt. Okay. Now, as per the process of osmosis, whenever 2 solutions are separated by a semi-permeable membrane, there is always a movement of solvent molecules. तो हमारा solvent यहाँ पे क्या चीज़ है? That's water. जब भी 2 सॉल्यूशंस को हम सेपरेट करते हैं बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? हमेशा होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. सॉल्यूट यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा नेचुरली फ्रॉम सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी. ओके, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस. Okay, so now in the previous video lecture we have already studied that the normal blood pressure of a person is 120 upon 80 mm of Hg. Okay, now under certain circumstances what happens, हमारा जो ये normal blood pressure होता है, it starts varying. किस वजह से वैरी होता है? बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देयर इज एज, देयर इज जेंडर, आप कभी मेडिकेशंस पे होते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ब्लड प्रेशर को चेंज होने में कंट्रीब्यूट करती है. फाइन. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कभी हमारा ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है. से the systolic blood pressure changes from 120 to, let's say for example, 140. Okay, and the diastolic blood pressure changes from 80 to, say for example, 100. So in this case there is an overall increase in the blood pressure. Let's take another example. Let's say for example the systolic blood pressure decreases from 120 to, say, 80, and the diastolic blood pressure decreases from 80 to, say, 50. Okay. Now here you can see there's an overall increase in the blood pressure, and here there's an overall decrease in the blood pressure. Whenever the blood pressure of a patient increases, we say that the patient is suffering from hypertension. This is a very important concept and a very important misnomer as well. हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं कि फलाना बंदे को ब्लड प्रेशर है. ब्लड प्रेशर सबका होता है. व्हाट मैटर्स इज कि ब्लड प्रेशर वेरी कितना हो रहा है. अगर बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वी डोंट यूज द टर्म ब्लड प्रेशर, वी यूज द टर्म हाइपरटेंशन. अगर बंदे का ब्लड प्रेशर घट रहा है, वी डोंट यूज ब्लड प्रेशर, वी यूज द टर्म हाइपोटेंशन. Hyper means increase and hypo means decrease. So now you know hypertension refers to increase in the blood pressure and hypotension refers to the decrease in the blood pressure. Now, since we know that the blood pressure is varying and there are lots of factors that are responsible for the change in blood pressure, today we are going to focus or emphasize on what's the effect of salt
ऑन द ब्लड प्रेशर चेंजेस। हम मोस्टली कहते हैं कि सॉल्ट का इंटेक करने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, या सॉल्ट का इंटेक कम करने से ब्लड प्रेशर यूजुअली हमारा डिक्रीज होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इट हैपेंस। ओके, नाउ सी, द फर्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है, ओके, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड हमारा कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, फाइन। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब हमारा लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉर्मली 1 लीटर ऑफ ब्लड इस ब्लड वेसल से फ्लो कर रहा है, तो इस 1 लीटर का ब्लड लेट्स सपोज इस ब्लड प्रेशर इस ब्लड वेसल के ऊपर कितना होगा, 120/80 mm of Hg। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। नाउ लेट्स से ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अगर ये ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, पहले लेट्स सपोज 1 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा था, अभी लेट्स से 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड सेम ब्लड वेसल से फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ब्लड का वॉल्यूम जितना जितना इंक्रीज होगा उतना ज्यादा प्रेशर ब्लड वेसल्स पे पड़ेगा। सो मोस्टली क्या होता है, जो सॉल्ट का इफेक्ट होता है इसका काम होता है ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करना। जैसे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज द सॉल्ट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। We will just directly jump back to the concept of osmosis। ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पेशेंट ने बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर लिया, जैसे ही पेशेंट ने सॉल्ट कंज्यूम कर लिया वो सॉल्ट हमारा डायरेक्टली जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। अब अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स के बाहर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्ट इज लेस in the interstitial spaces or outside the blood vessels, while inside the blood vessels the salt concentration is very high। Now we have already studied the concept of osmosis। osmosis के according अब water का flow होगा, because human body में water already available होता है काफी quantity में। अब जब solutions का concentration change हो गया है तो water का movement शुरू हो जाएगा। water movement कैसे शुरू होता है, water का movement हमेशा होता है from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration। as a result बाहर से पानी आता है blood vessels के अंदर। जैसे ही blood vessels के अंदर पानी ज्यादा जमा हो गया वो blood के साथ mix करता है और blood का volume increase हो जाता है। blood का volume जैसे increase हो गया that means blood का pressure increase हो रहा है। so आप याद रखेंगे जब भी हम salt का intake ज्यादा करते हैं उसकी वजह से salt का accumulation blood में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से osmosis का process हो जाता है and naturally patient suffers from hypertension। I hope that's clear to you। So this was hypertension। Okay, now let's discuss hypotension। Let's consider the same situation। I am having a normal blood vessel with a normal blood flow, with a normal blood pressure of 120/80 mm of Hg। Let's say we are having a patient who is consuming very low concentration of salt or no salt at all। अगर पेशेंट सॉल्ट कंज्यूम नहीं कर रहा है ज्यादा, दैट मीन्स ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वुड बी वेरी लेस। ओके, ब्लड में अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ब्लड के अराउंड जो हमारी स्पेस है उसके कंपैरिजन में ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है।
यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पे ज़्यादा होगा। सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा ऑस्मोसिस का फिनोमिनन। ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स इस स्टेज पे ब्लड वेसल से वाटर निकल के आ जाएगा बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। जब ब्लड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, दैट मीन्स ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स से सपोज 110/70 mm of Hg. So this was the effect of salt on the blood pressure changes. That is why we say अगर नॉर्मली कोई पेशेंट हाइपोटेंशन वाला है, लो बीपी वाला पेशेंट है, तो हम उस पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप सॉल्ट कंज्यूम करो। नेचुरली पेशेंट सॉल्ट खाएगा, वो सॉल्ट ब्लड में जाएगा, ब्लड में जैसे ही सॉल्ट होगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से सॉल्ट ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने से ब्लड का प्रेशर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। थैंक यू सो मच।